So today we will begin nutrition in human being. I mean human beings. ঠিক আছে बिहारी हो गए फट कर देख न्यूट्रिशन इन पकड़ो इधर देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अगर तुमको समझना है तो सबसे पहले एज अ रिविजन याद करो कि हम लोग खाते क्या है. व्हाट डू वी ईट और व्हाट इज द कंपोनेंट. इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा स्टाइलिश रूप में करें व्हाट इज द chemical composition of the nutrients that we take. What do we eat বলছি দেখো বলতে পারে নাই মানে ওর ব্রেন কি কমপ্লেক্স দেখছিস কমপ্লেক্স কোশ্চেন করছি ও বলা শুরু করে দিচ্ছে ঠিক আছে স্যার আমি তখন বুঝছি what do you eat এটাই বলবি বুঝছিস আচ্ছা গুড বয়. So number 1 carbohydrates, good carbohydrates. The carbohydrates-টাই এমন যে carbohydrates-এর কমপ্লেক্সটাকে বলে হচ্ছে polysaccharide. If it is present in complex form we call it polysaccharide. Polysaccharide is made up of multiple units of glucose. That monosaccharide. Glucose ছাড়া অনেক monosaccharides হয়. Polysaccharides is a polymer of monosaccharides. Saccharides. হ্যাঁ পলিস্যাকারাইডস আর পলিমার অফ মোনোস্যাকারাইডস. পলিস্যাকারাইডস আর পলিমার্স অফ মোনোস্যাকারাইডস. ঠিকই বলছিস আর পলিমার্স অফ মোনোস্যাকারাইডস. দিস ওয়ান ইউনিট আর মোনোস্যাকারাইডস. বলতো এই যে মাঝখানের যে বন্ডটা এই বন্ডটাকে কী নাম দেওয়া হয় গ্লাইকোসাইডিক বন্ড. গ্লাইকোসাইডিক বন্ড. সেটা ফাংশন কি जो धोरे रख से इसका फंक्शन यही है कि ये पकड़ के रखा है मोनोसैकराइड्स को पकड़ के रखा है एक साथ. राइट और रॉन्ग. अच्छा इतना तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना होता है सो वी स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. ধরতে হবে কোনটা ধরো. এইবার ঘটনাটা নাও দ্য সেকেন্ড দ্যাট উই ইট ইজ প্রোটিন. আচ্ছা when carbohydrates are stored it is stored in the form of polysaccharides. You remember that? In plants it is stored in the form of what? Starch. In animals, in humans it is stored in the form of glycogen. Good. Yes, but interesting thing is that both starch and glycogen, both of these polysaccharides are made up of glucose only. Glucose the monosaccharide. But that is not the thing that glucose is the only monosaccharide known. Glucose is there, fructose is there, galactose is there, arabinose is there, ribose is there. So many monosaccharides are there. Plenty of monosaccharides are there. But interesting is that glucose is most important for life. Are you getting my point? So when we store, when we are not utilizing, when we are just storing, the plant by photosynthesis makes glucose. Plant by photosynthesis पकड़ना है इधर. Plant by photosynthesis ऐसा पकड़. Plant by photosynthesis makes glucose. Are you getting my point? But stores is at starch. Animals eats. Starch is stored in 2 types. हाँ 2 types माने amylose and हाँ amylopectin and amylose. Oh my God. This boy is doing something in life, huh? Good boy. Yes, he is correct. দুটো টাইপের স্টার্চ হয় আবার অ্যামাইলোজ আর অ্যামাইলোপেকটিন. অত ডিটেলস আমি ভাবি নাই যে বলবো. স্যার অ্যামাইলোজ হচ্ছে লিনিয়ার আর হচ্ছে অ্যামাইলোপেকটিন হচ্ছে ব্রাঞ্চড কমপ্লেক্স. অন রেকর্ড বলে দে অ্যামাইলোজ হচ্ছে অ্যামাইলোজ 80% লিনিয়ার ব্রাঞ্চ ফর্ম করে আর হচ্ছে অ্যামিলোজ হচ্ছে 20% অ্যামাইলোপেকটিন. 20% হ্যাঁ 80% লিনিয়ার আর ওদিকে 20% কমপ্লেক্স ব্রাঞ্চ করে. তো যাই হোক ওটা দরকার নেই. 2 ধরনের স্টার্চ হয়. দেখলি তো গালি দিছোর জন্য কত কিছু শিখলি. ঠিক আছে কিন্তু দরকার নাই. এইটাই যে জানতেছিস এটাই অনেক. তোদের এনসিআরটিতে এটাই আছে. বাট দেন তোদের এনসিআরটিতে এটা লেখা নাই যে হ্যাঁ হিউম্যান বিংয়ের মধ্যে গ্লাইকোজেন যে স্টোর হয় সেটাও গ্লুকোজের ইউনিট. মানে গ্লুকোজ ইজ অনলি ফর্মিং by bonding. Glucose is forming the glycogen. Glucose is only forming the starch.
Are you getting my point? But in plant it is stored as starch, in animals it is stored as glycogen. Sir, why this colarity? I mean, why this difference? This difference is because of the structure of the cell. Are you getting my point? Or the function of the cell of plants and animals. That is a different issue. Now the fact is that, sir, okay, fine. When we store as starch as glycogen in plants and animals, that is there. And when we utilize means, sir, always remember that न्यूट्रिशन का जो एम पढ़ा था ना तुम लोगों ने, न्यूट्रिशन का एम क्या क्या पढ़ा था कि एक उसमें से एक एम था एनर्जी जनरेट करना, राइट और रॉन्ग? और एनर्जी ग्लूकोज से ही जनरेट होता है. और ये इतना इंटरेस्टिंग बात है कि एनर्जी ग्लूकोज से जनरेट होता है. मतलब दुनिया के सब ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज से ही एनर्जी बना सकते हो. मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे एनर्जी बनेगा, इसका डिटेल्स और रेस्पिरेशन में, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा ग्लूकोज से ही स्टार्ट होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कहते हैं. लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन अराइज कर जाता है, वो मैं बाद में बताता हूं. पहले मुझे एक बात बताओ, प्रोटीन का यूनिट कौन है? प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स हाँ, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स क्या है? पॉलीमर है, राइट और रॉन्ग? ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, लेकिन उसका यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड. बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाता है, राइट और रॉन्ग? अमाइनो एसिड से. अच्छा, अब बात यह है कि सर अमाइनो एसिड का कैसा, देखो स्ट्रक्चर में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है, लेकिन चुप, तुम ज़्यादा बोल दोगे. अमाइनो एसिड लिंक होकर रखा है. ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है. जैसे कि ये बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड. अच्छा, अमाइनो एसिड लग गया, ये पेप्टाइड चेन हो गया. ये पेप्टाइड चेन क्या होता है, कभी कभी ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, ठीक है. कभी कभी ऐसे बीटा, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, और इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, ऐसे बीटा प्लीटेड शीट. और ये दोनों स्ट्रक्चर ना मिल के ऐसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन बना लेता है. तुम लोगों को मैंने एंजाइम्स का इंपॉर्टेंस पढ़ाया था ना, कि एंजाइम्स का क्लेफ्ट रहता है, उस जगह में आके कोई एक कंपाउंड लग जाता है, फिर निकलता है. और एंजाइम्स कौन बनाता है? एंजाइम्स क्या है एक्चुअली? एंजाइम्स एक्चुअली फंक्शनल प्रोटीन ही है. सिखाया था कि नहीं सिखाया था? वो एक्चुअली एंजाइम्स जो प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, वो एक्चुअली टर्शियरी स्ट्रक्चर है. इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. ये भी खुद में ऐसे सुपर कॉइल्ड हो जाएगा तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा. एंजाइम्स बन सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन सकता है. प्रोटीन तो हम लोग खाते भी हैं. तो प्रोटीन खाने का पर्पस क्या है? प्रोटीन खाने का पर्पस है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल मटेरियल. लेकिन तुम मुझे ये पूछ सकते हो कि सर आपने बोला एनर्जी के लिए ग्लूकोज ही चाहिए होता है, बोला कि नहीं बोला आपने? हाँ बोला. तो ग्लूकोज से ही एनर्जी बनता है. सोचिए, सारा दिन मैंने मीट खाया, नेक्स्ट डे भी मैंने मीट ही खाया, उसके नेक्स्ट डे भी मैंने मीट ही खाया, ठीक है, और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन चला गया, क्या मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा? मिलेगा. तो फिर सर आप तो बता रहे हो ग्लूकोज चाहिए. ग्लूकोज तो मैंने खाया नहीं, मैंने कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स खाया नहीं. दुनिया में दस्तूर ये है, मतलब बायोलॉजी का दस्तूर ये है कि तुम अगर दूसरा कोई कार्बोहाइड्रेट भी खा लो, स्टार्च के अलावा सेलुलोज वगैरह ये सब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड भी खा लो, फिर भी वो ग्लूकोज में ही बदलेगा. मतलब ग्लूकोज में ही बदलेगा. अच्छा चलो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल रहा है, मान सकता हूं, लेकिन तुमने सारा दिन प्रोटीन खाया, तब तुमको कहां से एनर्जी मिलेगा? भैया प्रोटीन ही ब्रेक होके अमाइनो एसिड जो बना है वही ग्लूकोज में बदल जाएगा. हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? इसको प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. मतलब ग्लूकोज का बनना. सेल के अंदर, बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनना ही पड़ेगा. हाँ, ये अलग बात है कि तब बहुत ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट पैदा होगा. इसीलिए तो बोलते हैं कि जिन लोगों का किडनी का प्रॉब्लम है उन लोगों को मांस खाने के लिए मना करता है. क्यों? रीजन तो यही है ना, क्योंकि तुम जब अमाइनो एसिड को तोड़ोगे और उससे जब ग्लूकोज बनेगा एनर्जी के लिए, तब नाइट्रोजिनस वेस्ट पैदा हो जाएगा. नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन क्लियर करता है? किडनी. ये भी पढ़ोगे इस चैप्टर में, एक्सक्रीशन में.
Are you getting my point? Am I being able to make myself clear? Sir, means this is byproduct. Yes, नाइट्रोजनस वेस्ट इज, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन रहता है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, CHONS, सल्फर इससे बना हुआ आता है। लेकिन ग्लूकोज किससे बना हुआ आता है? CHNO। सल्फर उतना ज्यादा रहता नहीं है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा बनेगा ना। सर অ্যাসিড হচ্ছে COH আর হচ্ছে অ্যামাইনো হচ্ছে NH2। No, amino acid looks like this. See, if you want to know, see, not like that. স্যার আর এখানে চপ। এখানে COH ওখানে R COOH NH2H. So they bond like this. That you don't go in detail. So हर एक मॉलिक्यूल में ही तो NH2 है, तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन निकलेगा। सल्फर उतना रहता नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा बनेगा ना। सर हमारे अंदर क्या बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट? यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बहुत कम बनता है, यूरिया ज़्यादा बनता है। मच्छी में क्या बनता है? एमोनिया। पाखी जो होता है, पाखी आई मीन बर्ड्स में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है। इसीलिए तो बोलता है कि नहीं, छोड़ो, अच्छा वो बात अलग है। अच्छा, तो ये प्रोसेस हो गया एक्सक्रीशन, वो छोड़ो, इतना समझ में आया। अच्छा, और क्या खाते हो? सर फैट्स खाते हैं, मज़ा आता है फैट्स खा के, सबसे टेस्टी होता है फैट्स, होता है कि नहीं होता है? बटर, घी, मांसेर चर्बी, नो ओके, ठीक है। फैट्स बहुत टेस्टी होता है बेटा, ठीक है। इसीलिए तो डाइटिशियंस बोलते हैं फाइबर्स खाओ, फाइबर्स। एक्चुअली फाइबर्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट देन हाँ, फाइबर्स शरीर में, फैट्स। अच्छा सर, फैट्स का क्या काम? देख, एक तो है कि हमारे एडिपोज टिश्यूज में फैट्स जमता है, येस और नो? हमारे एडिपोज टिश्यूज में फैट्स जमता है कि नहीं जमता है? तो हमारे एडिपोज टिश्यूज में फैट्स जम गया, राइट और रॉन्ग? वो क्या करता है? हमारा हीट इंसुलेशन कर देता है, बॉडी के अंदर का जो हीट वो बाहर नहीं निकलने देता है, वो अलग चीज़ है। फैट्स इज ऑल्सो एनर्जी यील्डिंग। हैं सर, फैट से एनर्जी मिलता है? थोड़ा मुश्किल है, ग्लूकोज से ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। जैसे कि एक रनर है जो दौड़ रहा है, उसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए तो बटर खिलाएगा कि ग्लूकॉन डी खिलाएगा? ग्लूकॉन डी, राइट और रॉन्ग? क्योंकि ग्लूकॉन डी फट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी देने लगेगा। लेकिन फैट्स क्या करेगा? ग्लूकोज में बदलेगा, उसके बाद एनर्जी देगा। वो फिर अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस फैट से भी बनता है। স্যার গ্লুকন ডি যেমন কি থাকে? গ্লুকন ডিতে গ্লুকোজটা মোনোমারিক ফর্মে থাকে, মোনোমারিক ফর্মে মানে পলিস্যাকারাইড ফর্মেও থাকে না, সিম্পল ব্রোকেন ডাউন ফর্মে থাকে। ওই জন্য ডাইজেশনের টাইমটা লাগে না। ব্লাডে চলে যায়। হ্যাঁ, খাওয়ার পরে ডাइजेशन टाइम लगे ना। इज दिस क्लियर टू यू? এখন इतना समझ में आया? इतना पूरा अच्छे से समझ में आ गया? मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ, अब बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।